Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Dr. Shaheen Pasha, and today we are going to uh, talk about Unit 3, Health, Education and Well-being. And in it we are going to talk today about planning for and making choices and changes. Life is a reflection of choices. According to the saying, you must make a choice to take a chance, or your life will never change. And Albert Camus said, life is the sum of all your choices. Some say that every moment is a choice, while others say it's every day. Many, of course, just wait until the obvious choices come to them, which is a choice in itself. In today's lecture, we'll be discussing planning for and making choices and changes. First of all, we are going to see what is planning for making choices. Planning can be defined as the process of selecting a future course of action. Decision making defined as the process of selecting a course of action from the alternatives. They need to be accurate for the welfare of the individual and organization. Successful strategic planning and strategic thinking is creating our future is based on identifying where to go and justifying why we want to get there. The foundation for where to go and why to get there lies in a clear yet often ignored reality. We are all means to the societal ends. You, me, our organizations, our friends are all means of achieving social ends. When we think strategically, we concentrate on adding value to our shared society, and then we plan strategically to get measurable societal results. कि हम ये सोचते हैं कि हमने प्लान जो कुछ भी करना है और जो हमारी फाउंडेशन है उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि हमने हमारा गोल क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमने जो है अल्टीमेटली हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और हर चीज़ को हम किस लिए देखते हैं कि हम सोसाइटी में कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड इन करेंगे और हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होएगा, और वो जो है एंड देन वी प्लान स्ट्रेटेजिकली टू गेट मेजरेबल सोशल रिजल्ट्स कि हम देखते हैं कि उसमें हमारा कितना फ़ायदा होगा, हमारी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उससे सोसाइटी का कितना फ़ायदा होगा, और जिससे कि ये क्योंकि एक डायनामिक process है, it's not a static, it's a dynamic process which is moving and which is increasing and which is changing, and we got to be very careful in making decisions to select the choices. और फिर जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मेकिंग चॉइसेस ये कितना ज़्यादा वर्थ रखती है इस चीज़ की. एंड देन प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन.
कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम किस लिए करते हैं कि हम अपने वाक़यात को, मौके को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी थिंकिंग को, अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए इंटर रिलेट करते हैं हर चीज़ को। और यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है हमारी लाइफ के अंदर जो है, टू प्लानिंग, टू मेक राइट डिसीशंस, टू पिक राइट चॉइसेस, जो कि हमारी ज़िंदगी के फंक्शन को जो है आगे लेके चलती हैं और उसी चीज़ को वो आगे बढ़ावा देती हैं। And when we talk about choices and changes, some basic decisions needs to be taken in life. इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और यही जो चीज़ है, it's a purpose of life. Justifying why we want to get there should be based on adding value to us and the community around us. In our life, there are some basic decisions that we make and we have to take clearly. For example, what is my destination? Why do I want to get there? जिसकी हमने अभी बात की कि हम वहाँ तक क्यों पहुँचना चाहते हैं. It seems rational that the destination and what constitutes success for me would have to be agreed upon, and you might have a fuzzy statement of purpose. However, you can change this ambiguous statement of purpose to make your actions more successful and meaningful. कि आप जब ये सोचते हैं कि पर्पस क्या है इसके अंदर कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, इसको टू मेक इट मोर सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल आपको क्या करना है, यू मे सी दैट everyone around you is benefiting from the positive changes you have made to precision, rigor and success. Defining where we should go and justifying why we want to get there should be based on adding value to us and the society around us. कि हम जो भी चॉइस लेते हैं, जो भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, हमें इस चीज़ के लिए जस्टिफाइबल होना चाहिए कि हाँ, हमने जो चीज़ चूज़ की है वो हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन करती है और इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी और वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी वैल्यू को बढ़ाती है. एंड देन डिसाइडिंग where to go is best nested in reality, the reality of economics, politics and society. Change is ever present and we may be masters of change or victims of change. इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या आप मास्टर बन जाएंगे चेंज के या आप विक्टिम हो जाएंगे चेंज के. Since change is taking place, we have options, and those choices we make have consequences. We can choose success or we can choose something else. ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि you got to be vigilant in choosing and selecting the choices. कि भी आप अगर विजिलेंट हैं, आपको मौके, हालात और जो हैं नए ट्रेंड्स का पता है, तो यकीनन आप वो पाथ चूज़ करेंगे जो सक्सेस की तरफ जाता है. एंड इफ़ यू आर इग्नोरेंट देन यू कैन चूज़ समथिंग एल्स. और जब हम ये बात करते हैं कि प्लानिंग जो है वो
फॉर चांसेस, चॉइसेस एंड चेंजेस कैसे होती है। एंड आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अगर चांस नहीं लिया और राइट चॉइस नहीं की तो आप अपने आप को कभी बदल ही नहीं सकते। इसके लिए यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक अ चांस, अदरवाइज योर लाइफ विल नेवर चेंज। वो कहते हैं ना कि अगर कोई गरीब पैदा होता है तो ये उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो मरता गरीब है या रहता गरीब है तो ये उसका कसूर है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट द 3 C's ऑफ लाइफ, वो 3 C's क्या हैं? चांसेस, चॉइसेस एंड चेंजेस। We can depend on change going on. We can take charge or wait for events to happen to us. We can be proactive or reactive. It all depends on our approach and mindset. We make choices both in our personal lives and in our organizational lives. We may choose to take control or be a victim. Even not making a decision is a decision. कि अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो ये भी आपका ही डिसीजन है। नो मैटर what we do or don't do, there are consequences. Results or consequences. We are responsible for the consequences of our lives. कि जो कुछ हालात व वाक़यात हमारी ज़िंदगी के साथ होते हैं हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। We can improve our own chances by knowing and controlling change through our choices. And वो क्या हैं? The 3 C's of life. जब हम ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चांसेस, चॉइसेस एंड चेंजेस, और ये जो 3 C's हैं, चांसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, an amount of time or situation in which something can be done, the possibility that something will happen, the way that events happen when they are not planned or controlled by people. फिर उसके बाद नाउन है चॉइस। क्या है? चॉइस क्या होती है? ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव, preference, selection. Election mean the act or opportunity of choosing or the thing chosen. Choice suggests the opportunity or privilege of choosing freely. Freedom of choice. Option implies a power to choose that is specially granted और गारंटीड कि आपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से आपने किसी एक बेस्ट वन जो आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए है वो चूज़ करते हैं और उसका फ्रीडम सिर्फ आपको होता है। ठीक है। एंड देन चेंज, ऑल्टर बोथ मीन टू मेक अ डिफरेंस इन द स्टेट और कंडीशन ऑफ अ थिंग or to substitute another state or condition. To change is to make a material difference so that the thing is distinctly different from what it was. To change one's opinion. क्या चेंज वही है कि जो नज़र आए कि पहले
वो किस तरह से सोचता था या उसकी अपीयरेंस कैसी थी और उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी चॉइसेस कैसी थी। और जब उसने चांस लिया, राइट चॉइस किया, तो उसके अंदर मेंटली फिजिकली जो है दूसरों को चेंज नज़र आया। तो ये चेंज जो है क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है उसके पहले वाले रवैये को और बाद वाले रवैये एंड अपीयरेंस को। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड एंड आई एम चेंजिंग विद इट। और ये एक ट्रूथ है कि इट इज़ बेटर टू टेक मैनी स्मॉल स्टेप्स in the right direction than to make a great leap forward only to stumble backward। कि अगर चेंज लाना है तो छोटे छोटे स्टेप्स में जाएं, एकदम से बहुत तेज़ी से आप चेंज को अडेप्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग चेंजेस, इवन एट द सेइंग गोज, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। कि ऐसा ये सिस्टमेटिक चेंज है फ्रॉम आवर बर्थ टिल डेथ, कि हर मोमेंट जो है हमारी लाइफ का, हमारे से जुड़े हुए हालातों वाक़यात का, इट्स कांस्टेंट चेंज है। सो व्हाई डू वी रेजिस्ट इट सो मच? व्हाई कांट वी एम्ब्रेस इट? चेंज इज स्केरी टू मोस्ट ऑफ अस। बहुत सारे लोग चेंज अडेप्ट करने से डरते हैं। We know how to deal with it today. Whatever happens to be our way based on our present decisions and their consequences. Some would rather deal with current reality than get out of their comfort zones and take a risk. A risk of changing what we do and how we act. We can move beyond our history and our conventional ways of thinking and acting। इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा जो है मुहतात होके करना है कि हमने किस तरह से चेंजेस को अडेप्ट करना है। इफ़ वी डोंट गेट द रिवॉर्ड्स रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, then it would seem only fair to change our ways, change what we do and how we do it. In simple words, we can say we are what we do and achieve. If we want to have different results, then we have to change ourselves. और फिर जब हम देखते हैं कि अगर चेंज करना है, then we have to step forward to adapt change. And then what we need to do, there are 7-8 steps in it. Define the results we are getting right now. Okay, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि इस टाइम पे हम कहाँ खड़े हैं, determine the results we are going to get. Okay, you got to be very sensibly make a target that what you want to achieve. Establish what actions and behaviors are going to deliver. जो उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो वो कैसे एक्शंस करने हैं कि जो हम ये टारगेट अचीव कर सकें. रिजल्ट्स दैट वी वांट टू गेट फ्रॉम द करंट रिजल्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस टू द डिज़ायर्ड आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम चाहते क्या हैं. Select new actions and behaviors. Decide to make a move. कि जब आपने select कर ली कोई चीज़, don't resist. Just to make a move और action करें उसके ऊपर. Support us in our changed behavior and actions
and be prepared to change again if we don't get the result and rewards we want. कि अगर हमारे जो हमने सोचा हुआ है उसके मुताबिक रिजल्ट आता है, वेल एंड गुड, और अगर वो हमारे उसके बरखिलाफ आता है तो देन हमें उसको अगेन करने की जो है वो ज़रूरत है, और हमें ये देखना है कि हम उसको कैसे पहुंच सकते हैं. एंड देन बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेप्स कौन से हैं कि जो हमें इन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू अस इन आवर लाइफ्स इज़ एंटायरली अप टू अस. इफ़ बैड थिंग्स हैपन we can be resilient, or we can give up and drift day after day. Means our decisions about change lead to ends, outcomes and consequences. It seems wise to relate our choices to the consequences that we want and not leave them to what fate and indecision we are faced with. कि अगर कोई चीज़, हर चीज़ जो है जो हमारे साथ होती है वो एंटायरली हमारी अपनी वजह से होती है, कि हमारी डिसीजन मेकिंग वैसी नहीं थी जो हम चेंज करना चाहते थे, जो हम चांसेस लेना चाहते थे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम वैसी ही हुई क्योंकि हमारी डिसीशंस जो थी वो गलत थी. लेकिन हियर आर some basic decision making steps. A researcher, Harold Greenwald, has suggested कि किस तरह से हम अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. Identifying the results you are getting that you don't want. कि डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ कि वो चीज़ें आप लिख लें जो आप नहीं चाहते. फिर आइडेंटिफाई द बिहेवियर पैटर्न्स यू आर एग्जिबिटिंग दैट ऑफर यू नेगेटिव रिजल्ट्स. कि आप उन नेगेटिव बातों की जो है निशानदेही करें जिसकी वजह से आपके बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं. एंड देन फिर उसके बाद मार्क करें, लिखें कि आप क्या चाहते हैं रिजल्ट में. आइडेंटिफाई द रिजल्ट्स यू वांट. आइडेंटिफाई बिहेवियर्स दैट विल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है और अचीव करना है. प्लान टू चेंज योर बिहेवियर, और सिर्फ प्लान ही नहीं करें, गेट चेंज्ड. बी रेडी टू कंप्लॉय टू चेंज इन द फ्यूचर इफ यू वांट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, फिर उसके अडेप्टेबिलिटी कर लें, उसको इख्तियार कर लें, और उसको सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को, अपनी चेंज को अडेप्टेशन दें उन हालात के मुताबिक. और फिर जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, वो राइट भी हो सकती हैं, रॉन्ग भी हो सकती हैं, और जो है प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं. वी डू मेक चॉइसेस. नॉट मेकिंग चॉइसेस इज़ अ चॉइस एज वेल, जिसकी हमने अभी बात की थी. वी कैन बी द मास्टर ऑफ चेंज और द विक्टिम ऑफ इट, all depending on our choices. No matter our choices, the consequences are ours to own. कि जो कुछ भी होता है
हमें ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी वजह से ही होता है, गलत चॉइसेस की वजह से। वी हैव टू कमिट to our choices and carry them through until we get the results we desire। और हमें क्या करना है कि हमें उस वक्त तक कंसिस्टेंट रहना है, उस वक्त तक हमने स्ट्रॉन्ग रहना है जब तक कि हमारी चॉइसेस राइट नहीं होती और हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को नहीं अचीव कर लेते। फिर उसके लिए भी here are few tips for making choices। think about what you want to do and whether it feels good for you, and then write down a list of pros and cons कि अच्छी और बुरी चीज़ें फॉर ईच ऑप्शन के अगर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम कैसी जो है चॉइस करूँगी, और अगर नहीं होगा तो तब मैं क्या करूँगी, उसको चेंज कैसे करूँगी। ट्राई टू इमेजिन दैट यू हैव ऑलरेडी मेड अ चॉइस, देन थिंक अबाउट हाउ यू फील। If you are worried about it, it might not be right for you। आप assume करें, आप ख्याली पुलाव पकाएं कि मैंने ये चीज़ चूज़ कर ली है, एंड देन जस्ट इमेजिन कि आप कैसा फील करते हैं। अगर आपकी गट फीलिंग्स जो हैं, सिक्स सेंस आपकी कहती है और आपकी इमेजिनेशन ये कहती है आप हैप्पी फील करते हैं, तो देन इट्स वंडरफुल। एंड इफ़ यू फील वरीड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ आपकी सोच में आपको सुकून और इत्मीनान नहीं देती, तो वो हो सकता है कि आपके लिए ठीक ना हो। एंड देन राइट चॉइसेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की चीज़ें की हुई हैं उनके साथ मिलें, उनके साथ बात करें और उनसे पूछें कि वो कैसा फील करते थे। टॉक टू समवन अबाउट कि भी वो व्हेन दे मेड सिमिलर चॉइसेस देन व्हाट इट वाज लाइक फॉर देम, ये करें। और जब आप ये सोच लेते हैं तो आपका कोई साथी, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, आपका कोई पीयर, आपका कोई रिलेटिव्स अगर ऐसा है जो आपका वेल विशर है, तो टॉक टू समवन अबाउट हाउ यू फील, like a trusting adult or a close friend, and then write down how you feel, draw a picture or write something that shows your thoughts and ideas. This can help you better understand your situation। कि जिस तरह से हम माइंड मैपिंग करते हैं, तो माइंड मैपिंग करें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, एंड देन you feel that how it looks। Remember, you don't have to do anything that makes you feel unsafe, क्योंकि ये आपकी चॉइस मेकिंग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो चीज़ के अंदर आप सेटिस्फैक्शन उसको अप्लाई करने में फील नहीं करते, डोंट डू इट। कोई ये मजबूरी नहीं होती कि आप वो चीज़ करें जिसके लिए आपका दिल नहीं मान रहा। तो ये चीज़ जो है आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। एंड देन व्हेन वी लुक लिटिल बिट फर्दर,
then we see that what are those factors which affect choices, decision making. वो क्या है? पीपल हैं, न्यू स्किल्स हैं, सॉल्व द राइट प्रॉब्लम है, थिंक इन सिस्टम्स, कम्युनिकेटिंग इन थिंकिंग, and then understanding people. And people are the real drivers of change. Innovating in an idea of choice often requires people's support. The teamwork and communication skills of your team members from diverse experiences will provide help in order to successfully solve new types of problems. कि आपका लोगों की नेटवर्किंग के साथ, लोगों की नेटवर्किंग आपकी टीम की होनी बहुत ज़रूरी है. न्यू स्किल्स, रिकग्नाइजिंग चेंज, सीकिंग न्यू पैराडाइम्स एंड यूजिंग न्यू लेंसेज रिक्वायर न्यू स्किल्स, जो कि सीखनी पड़ेंगी. एंड देन solve the right problem. People often sees themselves as problem solvers, but consider what is problem solving. You may be a big idea person, but try to develop the skill to pick the right problem which helps you to achieve your goal. Think in systems. Look for and find, create and leverage patterns. Simple systems are better. The right constraints are productive. ये क्या है कि simple systems लें. Right constraints are productive. Understand your goals and historical strategy models and look for parameters के सिस्टम क्या कहता है, उसको किस तरह से अडेप्ट करना है. ठीक है. एंड देन स्ट्रेटजी बनाए, उसके पैरामीटर्स बनाए कि किस तरह से इसको सक्सेसफुल करना है. कम्युनिकेटिंग इज थिंकिंग. जब तक लैंग्वेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट, सो इट्स ट्रिकी. वर्ड्स एंड मेजरमेंट्स क्रिएट द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ थॉट. Communication is not after all one way, it's shared. कि communication जो है ये आपकी thinking है. Broadcasting is not a communication. Develop effective communication skills जो shared हो, interactive हो, जो एक दूसरे को आप कम्युनिकेट अपनी थिंकिंग को कर सकें और वो समझ सके उसे. अंडरस्टैंडिंग people are complicated. Seek a deeper understanding of the context, behaviors, goals and activities of people around you. Consider how people make decisions, behavioral economic theory and personal motives. कि लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, सिस्टम को सीखना, आपका न्यू स्किल्स को सीखना, अच्छे लोगों के साथ, कॉम्पिटेंट लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना. ये वो जो हैं चीज़ें हैं जो कि आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जा सकती हैं और आपको फेलियर की तरफ भी लेके जा सकती हैं. एंड देन why are planning for and making choices and changes are important for children and young people? As the demands and employment patterns are changing in every day, it is particularly important for all young people to develop high levels of skills and understanding of the world of work
training and lifelong learning so that they can embrace opportunities, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो चाहे वो स्पेशल नीड्स हो. Hence it's important for parents and teachers to develop the skills and attributes children or young people will need to be able to achieve and sustain positive destinations beyond school. उसके लिए उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना यंग पीपल को और चिल्ड्रन को कि वो अपनी लर्निंग को, अपनी चॉइसेस को, अपनी चेंज को जो है अडेप्ट कर सकें और यही चीज़ें जो हैं उनके डिसीशन मेकिंग को, हर चीज़ लर्निंग एंड अचीवमेंट्स को एंड कुरिकुलम के अंदर इस तरह से उसको इम्पार्ट करना चाहिए कि वो अपनी इन चीज़ों को साथ के साथ आराम से सीखता चले. Now we are going to talk about required skills for personnel planning and making decisions in the context of curriculum, learning and achievement. Children and young people need to learn about choices in life, to manage expectations and hopes when making decisions. Children or young people should experience opportunities which raise their awareness of future choices and their own expectations and aspirations, कि उनके दिल के अंदर जो है, जो वो करना चाहते हैं, जो वो चूज़ करना चाहते हैं, जो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. Children or young people should also experience opportunities which raise their awareness of stereotypes about jobs and choices in life. And then it starts from very early level. Children in their early years and primary as well as some older children will be working at the early level of curriculum. As a teacher, you should know that help children to be curious and explore their world around them through play. ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपको बच्चे की ऑब्जर्वेशन फास्ट करनी है, आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी डालनी है कि उसके अंदर ये तजस्सुस रहे कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके और वो अपनी स्पेस बना सके अराउंड हिम एंड जो कि उसकी दुनिया अपनी है. और ये किस तरह होगा? ये थ्रू प्ले सिखाना है. यू आर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एंड टीचर्स, यू गॉट टू नो के ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ये बहुत ज़्यादा बच्चे की अर्ली लेवल के ऊपर ट्रेनिंग की और जो है सीरियस इनपुट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उसकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. टॉक अबाउट द जॉब्स दैट डिफरेंट पीपल डू, कि जिस तरह फैमिली, फ्रेंड्स, पोस्ट पर्सनस, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट हैं, सेल्स असिस्टेंट हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, बार्बर्स हो गई, पुलिसमैन हो गए, फायर ऑफिसर्स हो गए, पैरामेडिक्स, हमारे किसान जो हैं, फार्मर्स हो गए, ड्राइवर्स, स्पोर्ट्समैन, मैन एंड वीमेन, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कि हमें छोटी एज से ही बच्चे को हर काम में अज़मत के बारे में बताना है. एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट हु कैन डू सर्टन जॉब्स. नाउअडेज most jobs can be done by both men and women. और उसके लिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि बच्चे छोटी उम्र से ही
पेरेंट्स और टीचर्स और केयर गिवर्स जो हैं प्ले के अंदर बच्चे के एप्टीट्यूड को जान लेते हैं और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की अवेयरनेस जो है रेज़ करते हैं, उनके जो है लर्निंग उनकी अचीवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनकी चॉइसेस थिंकिंग को, सिलेक्शन को, डिसीशन पावर को, बच्चे की जो है प्लानिंग को, पर्सनल प्लानिंग को और उसकी जो है सेल्फ हेल्प स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के अंदर बच्चे को प्ले में सारा कुछ जो है वो सिखा दिया जाता है अर्ली लेवल में। और जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल आ जाता है। प्राइमरी लेवल के अंदर जब हम ये देखते हैं तो encourage children to try different activities and explore new interests. For example, find out about different clubs in their areas, और ये जो चीज़ है help them to find out about their local community and the wider world around them. They find out and learn about new things together. और जब हम एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं तो टीचर्स एंड केयर गिवर्स शुड टॉक अबाउट work and the training you have had. See if they can work out what skills they think are needed to do this work well. Compare what you do with other jobs, careers, and help children to find out what skills and training is needed for those. और इसके साथ फिर जब हम सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं तो इसके अंदर सपोर्ट चिल्ड्रन टू वैल्यू लर्निंग. फॉर एग्जांपल, प्रोवाइड अ डेडिकेटेड टाइम and space for completing homework with you on hand for support if necessary. Encourage children to talk with you, discuss the choices, support children in finding out more different courses and skills required for certain professions. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम जब उसको देखते हैं तो हमें ये चीज़ जो पता चलती है कि प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल आर वेरी इम्पोर्टेंट इन द लाइफ फॉर देयर फ्यूचर. तो जब हम ये बात करते हैं तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं यही बच्चे जो हैं जेंडर, पॉवर्टी एंड जियोग्राफिक लोकेशन और 3 की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिस्पैरिटीज़ इन चाइल्ड वेलबींग एंड चाइल्ड राइट्स इन पाकिस्तान. तो आज का लेक्चर आई होप यू वुड हैव लाइक दैट एंड ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से कि ये मटेरियल लिया गया. तो आप आई होप कि यू विल गो थ्रू एंड फाइंड इट to make your presentations more appropriate and more enriched. Thank you very much for listening the lecture.